Hello and welcome to everyone present here. As students, you already know that I had begun the chapter Resource and Development. And first of all, I had discussed with you the meaning of resource and development. Then I had discussed with you the types of resources. And today we will try to discuss the new topic, and that will be very beneficial to all of us to understand the chapter very properly. So today the topics which we are going to discuss, it is here. First of all, we will discuss about resource development, then problem created by indiscriminate use of resources. Then we will discuss about the term sustainable development. What does it mean? Then we will discuss about resource planning and importance of resource planning in India. And then we will take consideration of resource conservation. And lastly, we will discuss about land resource and land use pattern in India. So now let us begin it. First of all, development of resources. Resources are vital for human survival as well as maintaining the quality of life. No doubt, resources are very much important, and all the comfortability which we are experiencing in nowadays in our life, it is due to availability of different types of resources. It was believed that resources are free gift of nature and human beings started to use it indiscriminately. As a result, various kinds of problems has aroused before us. So we have just to put our mind into focus that in last 200 years, and particularly after industrial revolution, few countries started to use the resource indiscriminately in race of becoming developed nation, and they have such types of opinion that nature has provided it, so there is no any restriction, and in backdrop of available technology you should continue to utilize it. तो अपने तकनीकी बल के ज्ञान पर होड़ लग गई इसको यूज करने की, और इनडिस्क्रिमिनेट और बिना सोचे समझे इसके यूज होने से हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई. So now let us see what sort of problems now humankind facing at present due to ruthless and undiscriminate use of resources. Problems created by indiscriminate use of resources by man. The first problem we face here, many resources got depleted. Example, just forest, minerals. So if we are continuing to use the resource without having any look towards the future use and its quantity, the quantity of resource on this earth are getting very bleak and it is getting डिप्लीटेड. तो धीरे धीरे इस धरती से इतना बड़ी मात्रा में हम लोग पिछले 100-150 सालों से यूज करते आ रहे हैं, तो इसका परिणाम ये हो रहा है कि धरती से रिसोर्स कम होते जा रहे हैं, उनकी मात्रा घटते जा रही है. और एक फॉरेस्ट का ही एग्जांपल ले लीजिए कि धरती से कितने सारे फॉरेस्ट कट के, अब फॉरेस्ट कटने से अब मतलब एक इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए किसी भी इलाके में 21% ज़मीन पर फॉरेस्ट होना चाहिए. तो रूथलेसली यूज हुआ, वर्ल्ड लेवल पर फॉरेस्ट की बहुत कटाई हुई, जिसका क्लाइमेटिक इफेक्ट भी हमें आया है, पॉल्यूशन भी बढ़ा है और ग्लोबल वार्मिंग भी हुई है. तो ये तो हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है कि वी डिड नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन ऑफ द यूज ऑफ रिसोर्सेज. वी जस्ट थॉट इट दैट इट इज़ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड वी कंटिन्यू टू यूज इट. The second problem we faced, resources got accumulated in the hands of few people. The society is divided into rich and poor. So the use of a resource is not a new trend. It is going on last 200 years, and consequently the world has got divided into two social status. It means few countries has become rich and few people in the society has become very rich. They have more control over different types of researches due to being rich. So society has got divided into rich and poor. Third, and that is more striking and very formidable, and that is the cause of our environmental degradation. We are facing global warming, ozone layer depletion, environmental degradation, so many types of pollution we are talking about, and such types of problems has been created by nothing other than indiscriminate use of resources.
we are using the resources. We have established so many factories, and all the factories ovens are emitting out CO2 gases. We have so many types of transportation system, all are emitting out so many types of polluted gases. So we may see, how is it happening, all these things? It is only due to we are in the crazy race to become more and more developed, and we are not thinking that whether it may cause a problem to us. And no doubt we are now in the position that we are facing such types of costs. First result is that many resources are getting depleted. बहुत सारी रिसोर्सों की मात्रा, क्वांटिटी घटते जा रही है और समाप्त होने के कगार पर आ गई है. एंड सोसाइटी हैज़ गॉट डिवाइडेड इनटू रिच एंड पुअर. समाज दो भागों में बट गया है, विश्व दो भागों में बट गया है. कुछ कंट्रीज डेवलप्ड हो चुके हैं, कुछ कंट्रीज अनडेवलप्ड हैं, और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, क्लाइमेट चेंज, इस तरह के प्रॉब्लम्स हमें करने को मिल रहे हैं. नेक्स्ट, नाउ in backdrop of such problems, the scientist, the ecological scholar chalk out some plan that if the humankind will continue to make such types of development, and they will not take into consideration the future generation and the damage done to the environment, it will be very difficult for the humankind to survive on this earth. So they चॉक आउट ए प्लान ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नियंत्रित विकास एक तरह का इन्होंने एक मतलब कंसेप्ट निकाला. तो व्हाट डज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स? लेट अस सी. द इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच डज नॉट डैमेज द इन्वायरमेंट एंड एट द सेम टाइम टेक्स केयर ऑफ नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो नियंत्रित विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक ऐसा डेवलपमेंट की प्रक्रिया है क्योंकि all the countries are striving to use more and more resources. They are taking out minerals and coals, petroleums, all they are using for their own growth and development. So on the name of development, they are not taking consideration that the damage is being done to the environment. They are not taking in consideration that whether the future generation may need such these resources or not. So sustainable developments call for taking consideration all these two facts, that first of all you have to make development in such a way that there should be minimum damage to the environment, and there will be no compromise with the need of the future generation. You should be very much concentrate yourself in terms of development, that the resources may be available for future generation also. So sustainable development means the economic development in such a way that in one hand it does not damage the environment, as well as it fulfills the need of the future generation. So sustainable development या नियंत्रित विकास एक ऐसी विकास की प्रक्रिया है जिसमें कि वातावरण को, हमारे इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान होता है, और भविष्य के लिए भी जरूरत जो रिसोर्स की होती है वो पूरी होती है. Here there is a big summit, Earth Summit in 1992. सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर एक वर्ल्ड लेवल पर ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में एक समिट हुआ था. बहुत ही फेमस सम्मेलन हुआ था 1992 में. इन जून 1992 more than 100 countries met in Rio de Janeiro in Brazil for the first time to address the urgent problem of environmental protection and socio-economic development at global level, and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in 21st century. तो जून 1992 में विश्व के 100 देशों ने मिलकर एक सम्मेलन किया था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में. और वहाँ पर मतलब एक विषय जो था उनका कि कैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए और किस तरह की सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति विश्व स्तर पर कायम किया जाए. और इसके लिए वहाँ एक प्रपोजल पास हुआ जिसका नाम पड़ा एजेंडा 21. सो इन जून 1992 100 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड मेट in Brazil at Rio de Janeiro to discuss about the problems of environmental protection and
socio-economic development, and they adopted the plan of accepting the agenda 21 फॉर अचीविंग दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित एक बहुत बड़ी सम्मेलन भी हुई थी। नेक्स्ट वी सी रिसोर्स प्लानिंग। नाउ वी कम टू द रिसोर्स प्लानिंग। वन फैक्ट यू शुड नो दैट resource are not a free gift of the nature, but resources are not equitably distributed all over the world and all over the society। जो रिसोर्स है ये एक समान रूप से सारे विश्व में या सारे समाज में एक समान रूप से ये वितरित भी नहीं है, और इस रिसोर्स का यूज़ भी एक समान ढंग से नहीं हो रहा है कि सबका इक्विटेबल डेवलपमेंट हो। कुछ लोग रिसोर्स का यूज करके बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गए हैं, कुछ लोगों को रिसोर्स अवेलेबल ही नहीं है। तो अब रिसोर्स प्लानिंग की बात आती है कि रिसोर्स प्लानिंग किया जाए जिसके चलते सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज ए होल सबका हो। तो रिसोर्स प्लानिंग इज अ टेक्निक और स्किल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। तो रिसोर्स को किस तरह से प्रॉपर ढंग से यूज किया जाए, उसमें मिनिमम उसका मतलब वेस्टेज हो और सबको उस रिसोर्स का मतलब प्रॉफिट सभी लोग समाज के सभी तबकों को पहुंचे। तो इसके लिए एक प्लानिंग करनी पड़ती है जिसका नाम है रिसोर्स प्लानिंग। सो रिसोर्स प्लानिंग इज नथिंग बट द प्रॉपर एंड जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज टू अवॉइड accumulation of resources in few hands। There are three stages of resource planning। First, आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स प्लानिंग में तीन कार्य होते हैं। सबसे पहला इसमें है कि आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में जो रिसोर्स है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है और फिर उसकी सूची बनानी पड़ती है। तो सर्वेइंग, मैपिंग एंड मेजरमेंट ऑफ द क्वालिटीज एंड द क्वांटिटीज ऑफ रिसोर्सेज आर द इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज अंडरटेकन एट दिस स्टेज। So there are three stages for resource planning। In first stage, the identification and listing of resources is done। The expert just make the survey, mapping and measurement of qualities and quantities of the resource in the available in that region, and particularly it is done by the government of that area। Then second stage comes planning of exploitation। Once the resource is identified, its qualities and quantities is identified, then next stage comes how to exploit it for the development। So develop a planning structure with suitable technology, skill and institutional setup। So any government or any country try to involve the second stage of resource planning, how to exploit it, and for this purpose they look for suitable technology, skill and institutions so that the resource may be properly utilized and the economic development may be ensured of the society as a whole। Then match resource development plans with national development plans। So once the resource quantity, quality is identified, then its exploitation is already ensured in backdrop of available technology and skills and experts, then the government or the area where the resource is available, the stakeholder has to decide that how this resource may benefit of this resource exploitation reach to the overall people living in the country. It should match with the development plans of the country। It should not be that it should go in few hands and in few parts of the society। So we come to know that there are three stages of resource planning। First, identification and listing of resources, second, planning for exploitation, and third, matching resource development plan for the national development plans। Next, importance of resource planning। So is there need of resource planning and is it beneficial in context of country India? How is it important for resource planning in India? The question may be asked, why it is important of resource planning in context of India? It is necessary for the balanced development of India। Resource planning is a judicious use of the resource so that the benefit of the resource may reach to the each and every section of the society। It should not be accumulated and it should not be utilized by few people। So as far as the country India is concerned, it is the country of diversity in terms of availability of resource in different regions as well as different diversity we already know।
So resource planning is it utmost importance for the development of India. Why? Some regions of India are rich in certain resources and some are poor in other resources. भारत एक ऐसा देश है जहाँ कुछ राज्यों में रिसोर्स की बहुतायत है और कुछ राज्यों में रिसोर्स है ही नहीं, लेकिन पूरे इंडिया का डेवलपमेंट एक साथ करना है तो अब जिस इलाके में रिसोर्स रहेगा केवल वहीं रिसोर्स यूज होगा तो फिर पूरे भारत का तो विकास ही नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ती है। जैसे कि एग्जाम्पल, राजस्थान इज पुअर इन वाटर रिसोर्सेज बट रिच इन सोलर एंड विंड एनर्जी। तो अब जैसे राजस्थान है, वाटर रिसोर्स वहाँ कमी है और मान लीजिए दूसरे स्टेट में वाटर के प्लेंटी फुल ऑफ वाटर उपलब्ध है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्लानिंग करना पड़ता है कि राजस्थान में नहर बना करके, डैम बना करके राजस्थान को पानी दिया जाए और राजस्थान में सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन करके वहाँ से बिजली दूसरे स्टेट्स को दिया जाए। उसी तरह से सम रीजन्स आर सेल्फ सफिशिएंट वाइल अदर रीजन्स आर वेरी पुअर इंपॉर्टेंट से। कुछ महत्वपूर्ण रिसोर्स के मामले में तो कुछ स्टेट बहुत ही आगे हैं, जैसे मध्य प्रदेश, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। झारखंड तो भारत का 35% मिनरल्स भारत झारखंड के पास है केवल। तो मध्य प्रदेश, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपोजिट। ये तीन स्टेट्स आयरन और कोल और मैग्नीज, कॉपर, ये सब रिसोर्सेज में काफ़ी रिच हैं। लेकिन लद्दाख हमारा एक स्टेट है, मतलब अभी तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, जो कि पुअर है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, नॉर्थ इन स्टेट इंडिया में भी उतने रिसोर्स नहीं है। तो अब इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर कुछ स्टेट्स तो काफ़ी रिच है मिनरल्स में और कुछ रीजन काफ़ी पुअर हैं। देन इट इज़ वेरी मच नीडेड फॉर रिसोर्स प्लानिंग दैट रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में मैच विद द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। वेस्टेज रिसोर्स प्लानिंग से कुछ और भी आपका इनडायरेक्टली फ़ायदा होता है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड बाय प्लानिंग। रिसोर्स का बहुत कम से कम नुकसान हो सकता है अगर रिसोर्स प्लानिंग करके उसका यूज किया जाए। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड। इन्वायरमेंट का भी कम से कम पॉल्यूशन होता है अगर रिसोर्स प्लानिंग हो। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स कैन बी अवॉइडेड। ओवर यूज एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन को भी रिस्ट्रेन किया जाता है। तो वी सी दैट देयर आर मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग एंड इट इज़ वेरी मच beneficial in context of India, where some region of India are rich in important minerals and some regions are lacking it. Okay, now we see next one, resource conservation, resource का संरक्षण, संसाधन का संरक्षण। तो इसका मतलब क्या होता है? Planned use of resources in order to meet the present needs and to store a part of for the future generation is called resource conservation. तो किसी भी संसाधन का एक सही तरीके से प्लानिंग करके उसका यूज इस तरह से किया जाए कि उसकी कम से कम बर्बादी हो और उसका कुछ पार्ट फ्यूचर जनरेशन के लिए रखा जाए, तो इसे ही रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। प्लान्ड यूज ऑफ रिसोर्स इन ऑर्डर टू मीट द प्रेजेंट नीड्स एंड टू स्टोर ए पार्ट ऑफ फॉर द फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। तो रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब ये मतलब नहीं है कि आपको रिसोर्स यूज नहीं करना है। यू हैव टू यूज रिसोर्सेज इन अ प्लान्ड मैनर दैट द वेस्टेज ऑफ रिसोर्स एंड डैमेज टू एनवायरनमेंट में बी मिनिमम एंड ऑल्सो यू हैव टू पुट इन टू कंसिडरेशन दैट all of resource you may not use at a time, part of it may be stored for the future generation. So that is why this is the meaning of resource conservation, a planned use of resources in order to meet the present need as well as to meet the future generation need. It is necessary. Why is it necessary, resource conservation? Many resources are non-renewable and exhaustible. तो हम पहले ही टाइप्स ऑफ रिसोर्स में पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल हैं। वंस इट इज यूटिलाइज इट इज ended forever. We cannot renew it, we cannot recycle it, it is exhausted forever. तो जैसे फॉसिल फूल्स हैं, पेट्रोलियम्स हैं, कोल हैं, तो बहुत सारे रिसोर्स ऐसे हैं जो एक बार यूज होने के बाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। So if we don't conserve them, then we can't use it for a longer period of time. तो हम बहुत सालों तक उसका यूज नहीं कर सकते हैं। सो रिसोर्स कंजर्वेशन इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू यूज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सेकेंड, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हेल्प अस टू रिड्यूस वेस्टेज। रिसोर्स कंजर्वेशन जब हम करते हैं तो रिसोर्स की कम से कम बर्बादी होती है एंड इट विल हेल्प इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ये देश के आर्थिक विकास में भी सहायता करता है। रिसोर्स कंजर्वेशन हेल्प अस टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट।
तो रिसोर्स कंजर्वेशन से वातावरण का भी प्रोटेक्शन होता है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं, अब जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनते हैं। अब यहाँ तक कि आजकल तो मतलब आप देख सकते हैं कि एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सर्टिफिकेट्स लेना पड़ता है सारे व्हीकल्स को, गाड़ियों को, और जितने भी फैक्ट्रियां हैं उनको भी लेना पड़ता है। तो इस तरह से बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस के तहत हम लोग यूज़ करते हैं रिसोर्स, जिससे कि इन्वायरमेंट का भी प्रोटेक्शन हो जाता है। तो देयर आर मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट्स ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन। वी कैन यूज द नॉन रिसोर्सेज फॉर longer duration of time. We can uh, reduce the wastage of the resources, and as well as we protect our environment. Okay, here it is a very famous idea regarding resource conservation. गांधी जी ने अपना एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य रिसोर्स का, जब उन्होंने वर्ल्ड लेवल पर जब देखा कि बहुत सारे देश रिसोर्स का अंधाधुन मतलब उपयोग कर रहे हैं विकास की होड़ में, तो उनका इस पर नज़र गया और उन्होंने अपना वक्तव्य इस पर दिया। उन्होंने अपनी एक टिप्पणी की, उन्होंने कहा, क्या कहा? अकॉर्डिंग टू गांधी जी, देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। उन्होंने कहा कि जिस तरह से धरती के रिसोर्स का यूज हो रहा है कुछ देशों के द्वारा, कुछ तबकों के द्वारा, तो ऐसा लगता है कि उनमें बहुत लालच है, उनका लालच के लिए पूरा करने के लिए धरती के पास नहीं है, लेकिन सभी को जरूरत को पूरा करने के लिए धरती के पास सब कुछ है। अगर वी यूज जुडिशियसली एंड amicably the resources, then there is enough on the earth. But if we are using the resources ruthlessly for our own benefits, for our own individual gain, then there is not enough resource to fulfill anybody's greed. तो उन्होंने कहा कि जब अंधाधुन रिसोर्स का यूज हो रहा था, तो उन्होंने यही कहा कि किसी की जरूरत पूरा करने के लिए, इस धरती पर सभी व्यक्तियों की जरूरत को पूरा करने के लिए तो रिसोर्स काफ़ी है, लेकिन किसी की लालच को पूरा करने के लिए नहीं है। कि अब लैविश स्टाइल, अब हम बहुत स्टैंडर्ड मतलब विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए हम अब बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करेंगे, बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन करेंगे, तो उसके लिए तो हम अब बहुत सारे रिसोर्स धरती से यूज करेंगे। तो इस तरह का जीवन जीने के लिए फिर तो हम तो रूथलेसली यूज करेंगे ही, जो कि डेवलप नेशंस कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडी नीड्स, सभी व्यक्तियों की जरूरत पूरा करने के लिए तो रिसोर्स हैं, बट देयर इज नो रिसोर्स एनफ फॉर एनीबॉडीज ग्रीड, लेकिन किसी का लालच पूरा करने के लिए इस धरती पर एनफ रिसोर्स नहीं है। Greedy and selfish individuals and the exploitative nature of modern technology are the root cause of resource depletion. उनका कहना था कि कुछ देश जो हैं और कुछ देश के समाज के लोग जो अपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बल पर रिसोर्स का इतना तेजी से यूज कर रहे हैं कि ये रिसोर्स की मात्रा धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। और रिसोर्स समाप्त होने का सबसे रूट कॉज यही है कि दे आर नॉट सेटिस्फाइड ओनली टू फुलफिल देयर नीड, दे आर नॉट लुकिंग फॉर टू मेंटेन देयर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इन सच ए वे they don't need extra resources. They are looking to make improvisation more comfort. They are willing to make their life more comfortable. So for these purposes, you are exploiting the resources very ruthlessly, indiscriminately, and that is why he had told that there is enough to fulfill everybody's needs, but not enough to fulfill anybody's greed. And he also put it responsible that ruthless use of resource, some greedy individuals and selfish individual nature of exploiting the resource from the earth is the root cause of resource depletion. He was against mass production and wanted to replace it with production by masses. So Gandhi ji was of a very socialist ideology person. He thought that if developed nations or if a country or society is having modern technology, big machines, cranes, and they are utilizing in their mines area and exploiting the resources, it is not good. He advocated that instead of mass production,
द प्रोडक्शन शुड बाई मासेस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब रिसोर्स का प्रोडक्शन में भागीदारी हो, वो उनके लिए मतलब पसंदीदा चीज़ थी। ये नहीं कि थोड़े से मशीन के बल पर मास प्रोडक्शन किया जाए केवल अपने फायदे के। सो दैट वाज द आइडिया ऑफ गांधी जी। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, लैंड रिसोर्स, भूमि संसाधन। तो जमीन तो बहुत बड़ी चीज है और जिसे धरती माता भी हम लोग हमारे शास्त्रों में कहा गया है, तो वी कांट डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड। Land is a very vital and utmost importance resource to all of us. The human civilization have evolved on this land. The human activities starting from agriculture to mining, transportation, all are dependent on land resources. Land resource support natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transportation, communication. So all human civilization are flourishing and evolving and developing on this land resource. सारे जीव जंतु, सारे पेड़ पौधे, सारी मानव जाति इसी भूमि पर पल पल कर बड़ी हुई है। और आज जो हम मॉडर्न सोसाइटी और इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, पूल्स, ये सारे चीज़, हमारा जो मॉडर्न सिविलाइजेशंस का जो स्ट्रक्चर है वो सभी लैंड पर ही है। और हमारा अन्न भोजन वो भी लैंड से ही मिलता है। सो वी कांट डिनाई द इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंड. Land is fixed resource. Anyhow, marginally we can change the percentage of land, but land is fixed resource. And now we will discuss about land resource. So land, it is of utmost importance. It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transportation, communication, and many more. India has land under a variety of relief feature, namely mountains, plateaus, plains, and islands, and एज सोन बिलो. सो इंडिया एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर भूमि की बनावट मुख्यतः तीन प्रकार की है. प्लेन्स भी मिलते हैं इंडिया में, माउंटेन्स भी मिलते हैं, और प्लेटूज. तो लैंड रिसोर्स का थ्री फॉर्म में है यहाँ पर. तो इंडिया के पूरे जो ज़मीन है, पूरा जो एरिया है, उसमें आपका 43% मैदानी इलाका है, 27% आपका जो है वो प्लेटू है, और 30% जो है वो आपका माउंटेन है. तो भारत में लगभग आधे से भी कम इलाका मैदानी इलाका है, बिकॉज प्लेन्स आर सपोज टू बी रिच लैंड रिसोर्स, बिकॉज इट helps in multi-dimensional manner starting from agriculture to the development of human structure. तो मैदानी इलाका को सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि यही उपजाऊ मिट्टी देता है खेती के लिए, और फिर यहाँ मानव सभ्यता का विकास भी आसानी से होता है. तो भारत में 43% आपका मैदानी इलाका है, 27% आपका पठारी इलाका है, और 30% आपका पहाड़ी इलाका है, मतलब माउंट पर्वतीय क्षेत्र है. लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस. किसी देश के अंदर लैंड जो होता है, भूमि जो होती है, वो अलग अलग पर्पस के लिए यूज होती है, अलग अलग क्षेत्रों में होती है. किसी भी देश के अंदर, चाहे मतलब इंडिया का ही एग्जांपल लिया जाए, तो कुछ परसेंटेज लैंड जो है वो फॉरेस्ट में जाता है, वन के रूप में होता है. सेकेंड, मेनली 5 कैटेगरीज हैं जो लैंड यूज होते हैं. 5 कैटेगरीज में फर्स्ट कैटेगरी मतलब उसका पार्ट है फॉरेस्ट. तो फर्स्ट मतलब कैटेगरी में फॉरेस्ट होता है. सेकंड, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन. दूसरा जो कैटेगरी है जहाँ जिसमें लैंड होता है वो है मतलब खेती योग्य भूमि नहीं, वो कल्टीवेशन के लिए उपलब्ध नहीं होता है. इसमें आते हैं बैरन एंड वेस्टलैंड, बंजर और बेकार की भूमि, और लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज, जैसे कि बिल्डिंग, रोड्स और फैक्ट्रीज. तो पहला तो आपका लैंड का कुछ पोर्शन या तो फॉरेस्ट में जा सकता है. दूसरा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, उसमें आपका या तो बंजर भूमि आ सकती है या फिर मनुष्य द्वारा निर्मित रोड, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज आ सकती है. तीसरा है अदर अनकल्टिवेबल लैंड्स. तीसरा जो कैटेगरी है लैंड यूज का वो है मतलब एक तो बैरन लैंड है, उसके अलावे भी अकृषि योग्य भूमि है, और इसमें क्या क्या आते हैं, परती भूमि को छोड़कर, एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड. तो तीसरी कैटेगरी में आती है अकृषि योग्य भूमि.
तो कृषि योग्य भूमि ये नहीं होती है। इसमें क्या आता है, परमानेंट पास्चर, मतलब कि एक चारागाह होता है जो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में एक परमानेंट पास्चर्स और ग्रेजिंग लैंड, तो चारागाह होता है, पशु चारे का मैदान होता है, वो परमानेंट होता है। दूसरा, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, तो कुछ लैंड जो होते हैं वो पेड़ों की, कुछ खास तरह के पेड़ों की, मतलब प्लांटेशन एग्रीकल्चर होते हैं, रबड़ का पेड़ जैसे, या कुछ पेड़ होते हैं, या फिर कुछ मतलब जैसे शीशम, सागवान, इस तरह के पेड़ हो, तो वहाँ पर खेती संभव नहीं है। तो एक तो पास्चर लैंड हो गया, दूसरा लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज, अलग अलग प्रकार के पेड़ों के अंदर चले जाते हैं। तीसरा, कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, ऐसा लैंड जिस पर पिछले 5 साल से खेती नहीं। तो लैंड यूज पैटर्न में पहला हम लोग देखते हैं फॉरेस्ट, दूसरा लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, इसमें पेरेंट एंड वेस्ट लैंड आ गए। दूसरा आ गया लैंड पुट टू नन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, से रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, टाउन, विलेज में चलता है। तीसरा अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स, उसमें परमानेंट पास्चर्स आ गए, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज आ गए, और कल्टिवेबल वेस्ट लैंड मतलब कि ऐसा जमीन जिसमें पिछले 5 साल से खेती नहीं। चौथा जो लैंड का यूज हो सकता है किसी कंट्री में, मतलब लैंड होता है पैटर्न, उसका है फैलो लैंड, मतलब परती भूमि। तो इसमें भी दो तरह के परती भूमि होती है, एक करंट फैलो लैंड, एक होता है अदर देन करंट फैलो लैंड। तो करंट फैलो लैंड में मतलब वर्तमान की परती भूमि, मतलब किसी जमीन पर खेती के टुकड़े, जमीन के इलाके में अगर खेती 1 साल करके फिर 6 महीने के लिए खाली छोड़ दिए, या साल भर के लिए, 1 साल से कम ही होना चाहिए, तो 1 साल के अंदर तक अगर वो जमीन खाली रहता है तो उसे करंट फैलो लैंड कहते हैं, एक बार खेती होने के बाद। और अदर देन करंट फैलो, वर्तमान प्रतिभूमि के अलावा ऐसी प्रति जिसमें पिछले 5 साल से खेती ही नहीं हुई, तो ये फैलो लैंड प्रतिभूमि भी आता है। इसके 2 सब कैटेगरी थे। अब आता है नेट सोन एरिया, दैट इज मच इंपॉर्टेंट, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। तो नेट सोन एरिया, यही किसी देश के फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन का एरिया होता है। टोटल एरिया सोन वंस इन एग्रीकल्चर, ये तो एक साल में उस देश के अंदर जितने जमीन पर खेती होती है, एक बार जब फसल बोई जाती है, उसको नेट सोन एरिया कहते हैं। दूसरा है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है कि उसमें नेट सोन एरिया प्लस अगर उस पर 2-3 फसलें ले जाती है तो उस एरिया को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। तो टोटल एरिया सोन मोर देन वंस एंड प्लस नेट सोन एरिया। मान लीजिए कि आपके देश में आपके पास 10 एकड़ जमीन, तो 10 एकड़ में एक बार खेती किए तो वहाँ नेट सोन एरिया हो गया 10 एकड़। अगर उस 10 एकड़ जमीन में हमने साल में 3 फसलें ले ली, रबी की फसल ली, जायद की फसल ली, और मतलब आपका खरीफ का भी, तो 3 बार में 10-10 एकड़ पूरे बुआई हुई, तो 3 बार में 10-10 एकड़ में 30 एकड़, तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हो जाएगा 30 एकड़, लेकिन नेट सोन एरिया होगा 10 एकड़। तो जिस देश में, जिस इलाके में एक कृषि वर्ष में एक बार फसल जो बोई जाती है उसको नेट सोन एरिया कहते हैं, और एक बार फसल बोने के बाद अगर उसको 2-3 बार बोई जाती है तो उसको भी हम लोग जोड़ लेते हैं, तो वो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो दे आर मेनली 5 कैटेगरीज, फॉरेस्ट, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, इसमें बैरन लैंड और ह्यूमन स्ट्रक्चर के अंदर जाने वाला लैंड। तीसरा है अनकल्टिवेबल लैंड, जिसमें कि परमानेंट पास्चर लैंड इन मिसलेनियस कैटेगरीज ऑफ ट्रीज एंड कल्टिवेबल वेस्ट लैंड आता है। चौथा फैलो लैंड माने प्रतिभूमि आती है, और 5वां नेट सोन एरिया। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, भारत में लैंड यूज पैटर्न क्या है? द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड, किसी भी इलाके में आप लैंड कैसे यूज करिएगा, इसमें आपको कुछ लिमिट्स मिल जाते हैं प्रकृति की तरफ से। फिजिकल फैक्टर सच एज टोपोग्राफी, भूमि की बनावट कैसी है, वहाँ पहाड़ी इलाका है कि मैदानी इलाका है कि पठारी इलाका है, तो उसी के हिसाब से आप लैंड को यूज कर सकते हैं। क्लाइमेट कैसा है, जिस तरह की क्लाइमेट होगा उस तरह की वहाँ खेती होगी। और सॉइल टाइप्स, मतलब वहाँ के मतलब एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल लैंड है कि नहीं है, वो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पर निर्भर करता है। तो फिजिकल फैक्टर, किसी भी इलाके का लैंड आप कैसे यूज कीजिएगा, क्योंकि ह्यूमन काइंड ऑलवेज वांट टू मेक मैक्सिमम आउट फ्रॉम द लैंड, लैंड से तो वो अधिक से अधिक मतलब उसका मतलब यूटिलाइजेशन करना चाहता है, लेकिन ऐसा चाहने से नहीं होगा। उसका टोपोग्राफी क्या है, क्लाइमेट क्या है, और सॉइल टाइप क्या है, ये फिजिकल फैक्टर्स हैं जिससे उसका यूज निर्भर करता है। दूसरा ह्यूमन फैक्टर, ह्यूमन फैक्टर पर भी हाउ डू यू गोइंग टू यूज द लैंड आल्सो डिपेंड्स, सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर पॉपुलेशन कम है तो आप खेती एक बार कीजिएगा, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो फिर
आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए मतलब लैंड का इंटेंसिवली यूज़ कीजिएगा। टेक्नोलॉजी की आपके पास कितना टेक्नोलॉजी है लैंड को यूज करने के लिए, और कल्चर आपका क्या है, ट्रेडिशन क्या है। तो टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स विच डिटरमाइन द लैंड यूज ऑफ इन एरिया। फर्स्ट इज फिजिकल फैक्टर, हाउ इज द फॉर्म ऑफ लैंड, वेदर इट इज plateau, whether it is plainy, whether it is mountainous area, what type of climate is there, and what type of soil is available there. These first physical factor will determine at that how much extent you are going to the land of that area, and second factor is human factor, that what is the population density in that area, what is the technological capability of the people of that area, and what is their culture and tradition. That will decide the land use pattern in that area. अगर मतलब कि कल्चर में बहुत लोग हैं चरवाहे किस्म के हैं तो वो पास्चर लैंड का ज़्यादा यूज करेंगे। अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है तो वहाँ पर वो फैक्ट्री का ज़्यादा यूज करेंगे। और ट्रेडिशन कैसा है, तो ये ह्यूमन फैक्टर्स और फिजिकल फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से ही किसी क्षेत्र के लैंड यूज को पैटर्न मतलब निर्भर करता है। द डाटा गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। अब नीचे हमारे पास 1960 और 61 का डाटा है और एक 2014-15 का है। मतलब एक 1960-61 का है, दूसरा 2014-15 का है। इन दोनों डाटा में हम थोड़ा सा देखें थोड़ा सा कि क्या क्या चेंजेस आए हैं पिछले 60 सालों में। तो इंडिया में देखिए 1960 में 18.11% पर फॉरेस्ट था और 2014-15 में 23.3% पर फॉरेस्ट, मतलब पिछले 60 सालों में फॉरेस्ट एरिया में मतलब इजाफा हुआ है। अच्छा, 1960-61 में बैरन लैंड बंजर भूमि कितनी थी, 18.11%। अब वो 2014 में 5% बहुत घट गया। बैरन लैंड को कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट किया गया क्योंकि हमें कृषि की उपज बढ़ानी थी। तीसरा एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर एरिया, तो 1960-61 में नॉन एग्रीकल्चर मतलब कि बिल्डिंग टाउन्स फैक्ट्री में 4.9% था, जो कि बढ़ गया 8.7 के, कि बहुत पॉपुलेशन बढ़ा, टाउन्स का पॉपुलेशन बढ़ा। टाउन्स में शहरों में तो जनसंख्या बढ़ने से बहुत पुल बने, रोड्स बने, ब्रिजेस बने, तो वो तो एरिया मतलब आपका बढ़ गया। आपका नॉन एग्रीकल्चर वाला एरिया जो पहले कम था वो अब लैंड पुट अंडर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ वो बढ़ गया। उसके बाद आप देखिए परमानेंट पास्चर वो 4.71% था, वो थोड़ा सा घट गया 3.3 पर आ गया। एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, तो मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स के अंदर 1.5% था, वो भी थोड़ा घट गया 1% हो गया। कल्टूरेबल वेस्टलैंड 6.23 था, वो भी थोड़ा घट गया 4% हो गया। करंट फॉलो अंडर अदर देन करंट फॉलो लैंड, तो जो पिछले 5 सालों से खेती नहीं हुई है उसको मतलब अदर देन करंट फॉलो लैंड कहते हैं। तो उसमें 3.5% था तो वो 3.6 है, और करंट फॉलो लैंड जो था 3.73% था तो वो बढ़कर 4.9% हो गया। नेट सोन एरिया जो है, ये नेट सोन एरिया में आप देख सकते हैं 1960-61 में 46.26% था, और लेकिन 2014-15 में 45.5%, माने 1% कमी ही लगभग हुआ है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि फॉरेस्ट का भी थोड़ा एरिया बढ़ा है और नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में भी बहुत इजाफा हुआ है। आप देख सकते हैं जो शहर बहुत छोटे होते थे अब सब खेती वाले ज़मीन, तो ही शहर में हमारा टाउन कहीं आप ले लीजिए, मतलब कितना यहाँ पर ज़मीन का यूज़ घर बनाने में हो गया। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, लैंड डिग्रेडेशन, भूमि का निम्नीकरण। भूमि का निम्नीकरण या भूमि का मतलब एक तरह से डिग्रेडेशन, उसका मतलब उसका एक तरह से पॉल्यूशन या उसका क्षय कैसे होता है, उसके लिए डिफरेंट कॉजेज है। लार्ज स्केल सॉइल इरोजन कॉज्ड बाय रनिंग वाटर एंड, तो भूमि का क्षय हो सकता है उसमें अगर सॉइल इरोजन हो जाए रनिंग वाटर बहते हुए पानी से या हवा से। डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम माइनिंग सेंटर्स एंड इंडस्ट्रियल, अगर बहुत बड़े इलाके में अगर बहुत सारे वेस्ट मटेरियल को चाहे वो माइनिंग से आते हो या इंडस्ट्रियल यूनिट से आते हो, इंडस्ट्री से निकला हुआ कचरा या फिर आपका माइनिंग सेंटर से निकला हुआ कचरा अगर कहीं कहीं जाकर उसको हम डंप कर देते हैं तो उससे भी लैंड का डिग्रेडेशन होता है। तीसरा है ओवर इरिगेशन लीड्स टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी ऑफ द सॉइल, अगर किसी इलाके में बहुत ज़्यादा मतलब आप खेतों में उपज के लिए बहुत ज़्यादा सिंचाई करते हैं तो और खुद खाद का यूज करते हैं तो वहाँ धीरे धीरे
मिट्टी नमकीन होने लगती है। और ये सब पंजाब के इलाकों में देखने को मिला है। पंजाब में गेहूं का प्रोडक्शन, और वहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन भी बहुत हुआ था 1960-65 के दौरान। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मेथड ऑफ टेक्नोलॉजी वहाँ यूज हुआ था खेती का। तो बहुत खाद और बीज का यूज होने से मिट्टी जो है उसका मतलब उसमें खारेपन की मात्रा बढ़ गई, फर्टिलिटी घटी। ओवर ग्रेजिंग बाई एनिमल्स एंड डिफॉरेस्टेशन बाई मैन, पशुओं का मतलब ज़्यादा चराने से भी और डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटने से भी लैंड का डिग्रेडेशन होता है। वेस्ट वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्रियल यूनिट पॉल्यूट द लैंड्स, बहुत जगह मतलब केमिकल फैक्ट्री से और या प्लास्टिक फैक्ट्री से जो मतलब पानी निकलता है पॉल्यूटेड वाटर, वो इसी तरह से लैंड में मतलब छोड़ दिया जाता है, उससे भी लैंड की बर्बादी होती है। मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइम स्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सोप स्टोन फॉर सरमेइक इंडस्ट्री क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डस्ट। तो बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री है जिसमें कि मतलब लाइम स्टोन को काटा जाता है, सीमेंट इंडस्ट्री, इसमें बहुत धूल निकलते हैं, डस्ट निकलते हैं। ये सब डस्ट निकल के आसपास के इलाकों में बैठ जाते हैं, जिससे लैंड डिग्रेडेशन होता है। So you have to keep in consideration that there are number of reasons for the land degradation. First, erosion by running water and wind, which takes away the fertile upper soil. Second, dumping of waste material for mining and factories. Third, over irrigation. Fourth, overgrazing by animals. Fifth, wastewater from industrial unit, and some mineral processing units which creates much dust, which also create land degradation. लैंड कंजर्वेशन मेजर्स, तो लैंड डिग्रेडेशन होता है तो फिर उसका हमें कंजर्वेशन, उसका संरक्षण कैसे किया जाए, उसके कौन कौन से उपाय हैं। फर्स्ट, सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एंडिंग डिफॉरेस्टेशन, कंट्रोलिंग ग्रेजिंग, एनकरेजिंग एफॉरेस्टेशन एंड प्रैक्टिसिंग टेरेस फार्मिंग इन हिल एरिया। तो सबसे पहले लैंड का जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, अगर खेती लायक है तो उसमें मिट्टी होती है उपजाऊ, तो सबसे पहले सॉइल इरोजन को रोकना है। तो सॉइल इरोजन के लिए या तो वहाँ पर पेड़ काटने के लिए रोका जाए, या फिर पशुओं को चराने का कंट्रोल किया जाए, या फिर वहाँ पेड़ पौधे लगाए जाएं, या पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पर मतलब टेरेस फार्मिंग किया जाए, समुच्च खेती की जाए, घुमावदार खेती की जाए, जिससे कि पानी मिट्टी को बहा कर न ले। तो फर्स्ट मेजर इज टू land soil erosion may be prevented by ending deforestation, controlling grazing, encouraging afforestation and practicing terrace farming in hill areas. Second, preparation of shelter belts of plants and stabilization of sand dunes by growing thorny bushes will help to prevent land degradation in desert. तो देखिए डेजर्ट इलाके में क्या होता है कि जहाँ से डेजर्ट समाप्त होता है और फिर खेती लायक मिट्टी वाला इलाका शुरू होता है, तो होता क्या है कि डेजर्ट इलाके से जो हवा बह के आती है वो धूलकण बालू लेते आती है और अच्छे इलाके में भी वो उसको बैठा देती है। तो इसलिए जहाँ डेजर्ट खत्म हो रहा है, अगर वहाँ खूब पेड़ लगा दिया जाए, झाड़ियाँ लगा दिया जाए, तो उस डेजर्ट इलाके से आने वाली हवा के साथ बालू के कणों को नहीं आने देगी और आसपास के इलाके के मिट्टी का मतलब उस पर बिछने नहीं देगी, जिससे कि वहाँ पर आपका डेजर्ट का विस्तार नहीं हो। So preparation of shelter belts of plants and stabilizing of sand dunes, जो बालू के बड़े बड़े टीले होते हैं, टिब्बे होते हैं डेजर्ट में, वो भी हवा के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। तो अगर वो बढ़ते बढ़ते अपने इलाके को छोड़कर अगर मिट्टी वाले इलाके में आ जाएंगे तो फिर उसको भी ढक लेंगे, तो वो भी इलाका बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए शेल्टर बेल्ट्स, पेड़ों का लंबी लंबी कतारें लगा दी जाती हैं ताकि हवा के साथ वो बालू का कण उड़ कर ना आए और लैंड डिग्रेडेशन ना हो। माइनिंग एक्टिविटीज शुड बी कंट्रोल, न्यू टेक्नोलॉजी विच रिड्यूसेस वेस्टेज कैन बी। तो माइनिंग एक्टिविटीज़ में जिससे कम से कम पॉल्यूटेड मतलब मटेरियल निकले, वेस्ट मटेरियल निकले, जिसको कि कहीं डंपिंग वगैरह ना किया जाए, उसको ऐसी तरह से बहने ना दिया जाए। तो माइनिंग एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करने से लैंड डिग्रेडेशन, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करने से लैंड डिग्रेडेशन कम से कम होता है। अब जैसे कोल एरिया में है, कोयला निकाला जाता है तो फिर वो सब गड्ढा बच जाता है, तो उसमें बालू वगैरह भर दिया जाता है। तो माइनिंग एरिया को, माइनिंग में न्यू टेक्नोलॉजी मेथड से माइनिंग करने से लैंड डिग्रेडेशन कम होता है, धूलकण भी बहुत कम उड़ते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी केमिकली ट्रीटेड टू रिमूव द हार्मफुल। इंडस्ट्रियल किसी भी फैक्ट्री से कोई केमिकल्स, पॉल्यूटेड वाटर जो निकल रहा है उसको ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए, पहले सफाई करना चाहिए, तो फिर उसको मतलब बाहर आना चाहिए,
जमीन पर आना चाहिए। तो इस हर इंडस्ट्रियल यूनिट में ट्रीटमेंट प्लान होना चाहिए कि जो पॉल्यूटेड वाटर को पहले साफ कर दे, तब वो उसको जमीन पर बहने के लिए छोड़े। अर्बन वेस्ट शुड नॉट बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड बायोमैन्यूर। तो अर्बन वेस्ट शुड बी यूज, जो शहरों में बहुत सारा कचरा निकलता है, वो सब जाकर फिर रोड किनारे या कहीं खुले इलाके में उसको डंप कर दिया जाता है। तो उससे जला करके बायोगैस या बायोमैन्यूर बनाया जा सकता है, जिससे लैंड डिग्रेडेशन नहीं हो सकता है। ओवर इरिगेशन शुड बी स्टॉप्ड एंड न्यू मेथड ऑफ इरिगेशन। तो वी शुड नॉट ओनली कंसंट्रेट टू टेक हायर प्रोडक्शन फ्रॉम द land and make much use of irrigation and fertilizer. If we'll continue to use much irrigation and fertilizer, in long run the land will turn into being its soil not suited for the agriculture, and it will turn to unfertile land. So over irrigation should be avoided. So there are few measures to stop the degradation of the soil and conserve the land. So this way we come to the today topic. We have discussed it, and we will discuss in new video lesson about the types of soil as a resource. So how many types of soil are available in India, we will discuss in the next video lesson. Till then, okay, all of you, it might have helped you to understand thoroughly the chapter. Okay.